वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। जेन ऑस्टन का बहुत फेमस, इनफैक्ट उनका मोस्ट फेमस वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, एंड दिस इज लाइक अ क्लासिक, अ कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर and one of my favorite texts. I'm sure the girls listening to this, they definitely know about Mr. Darcy, because it has been a favorite of many people throughout generations. Mr. Darcy, Rochester from Jane Eyre. So yeah, let's not waste any further time and start with the introduction directly. Now, Pride and Prejudice, it was published in 1813, okay, and it's a novel of manners. Novel of manners होता है, it's a work of fiction जो कि एक social world को recreate करता है, और it conveys with detailed observation the customs and the values of this highly developed and complex society. So that's a novel of manners, and Pride and Prejudice, it's a novel of manners, okay. Now this phrase Pride and Prejudice, this title Pride and Prejudice, ये ऑस्टन ने प्रोबेबली लिया था फ्रॉम अ पैसेज इन फैनी बर्नीज सेसिलिया. याद रखिए, इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू. अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द नॉवल इज दैट के ओरिजिनल टाइटल नॉवल का था फर्स्ट इम्प्रेशंस. ओके, अगेन इम्पोर्टेंट फैक्ट फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू. The novel has been a very popular work and बहुत बार इसको अडाप्ट किया जा चुका है मूवीज में, सीरीज में. तो जो इसकी एक बहुत फेमस अडेप्टेशन है, दैट इज अ BBC अडेप्टेशन जो कि 1990s के दशक में आई थी, ड्यूरिंग दैट डेकेड, राइट. एंड इट स्टार्ड कॉलिन फर्थ as Mr. Darcy. So do watch that. बहुत अच्छा वर्जन है वो वाला. You should definitely watch that. Also, जो एक ऐश्वर्या राय की मूवी आई थी, if you would recall, Bride and Prejudice, so that was also based on this Pride and Prejudice. There was also a movie starring Keira Knightley, and that also was an adaptation of Pride and Prejudice. So if you want, you can either watch the series or these movies, but I would recommend that do watch that series. If we talk about the genre, which I've already discussed, it's a novel of manners, okay. So Pride and Prejudice एक earliest और बहुत influential example है of the novel of manners. So by the 1700s जो social classes और hierarchies थी वो change होना start हो गई थी England में, and because industry was on the rise and capitalism was on the rise, so it was now becoming possible कि जो लोग थे they were able to earn significant amounts of money during their lifetime अगर वो अमीर फैमिलीज में बॉर्न नहीं भी हुए थे तो, which meant कि जो social identity थी that became more complicated, okay. And therefore a new emphasis was placed on the subtle behaviors जो कि किसी की social background को signal करता था. So emphasis was placed on the subtle behaviors. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई कैसे ड्रेस करता है या कैसी वोकैबुलरी वो यूज करता है, उसकी टेबल मैनर्स, ओके. सो ऑल दीज वर द सटल बिहेवियर्स जिससे आप किसी की क्लास को जज कर सकते थे, एज इन वेदर दिस पर्सन हैड बीन बोर्न इनटू मनी and therefore was actually and truly upper class, or whether they had acquired their money in their lifetime, okay, and therefore they were not actually members of the upper class, okay. So in fact novel के अंदर there are many characters who are very concerned with money and social position, and they are very conscious कि हमेशा right तरीके से act करना है at all times. Talking about the setting, जो novel है, it is set in England at some point in the late 1700s or the early 1800s. Exact dates हमें नहीं पता, but it's somewhere around this time. And how do we know about this time? Because जो action है, it takes place around the Napoleonic Wars, because जो Austen है वो novel के अंदर refer करती है about soldiers and regiments, so it might be around the Napoleonic Wars, which was the period from 1797 to 1815. नॉवल के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इट्स नरेटेड बाय अ थर्ड पर्सन ओमनिशेंट नैरेटर, बिकॉज वो ओमनिशेंट नैरेटर है, उसको सब मालूम है. ओमनिशेंट समबडी हु नोज एवरीथिंग, ओके. तो जो नैरेटर है, ही हैज एक्सेस टू द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर, और वो इन्हीं चीजों को रीडर को डिस्क्राइब करता है. जो नैरेटर है नॉवल का, वो फ्रीक्वेंटली कमेंट्री वगैरह ऐड करता है कैरेक्टर्स और उनके एक्शंस के बारे में, जो कि रीडर के परसेप्शन को शेप करता है. ऑस्टन ऑल्सो यूजेस अ नैरेटिव स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स. जो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स होता है, दैट टेक्स प्लेस जब एलिजाबेथ के थॉट्स या फीलिंग्स रीडर को प्रेजेंट किए जाते हैं विदाउट सिग्नल्स लाइक शी थॉट, राइट. वो ऑथर जो नैरेटर है वो वहां पर ये नहीं लिख रहा है शी थॉट, वो डायरेक्टली आपको एलिजाबेथ के थॉट्स और फीलिंग्स प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स.
सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, राइट? सो वी हैव मिस्टर एंड मिसेस बेनेट और इनकी 5 बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी जो होती है दैट इज Jane Bennett, and then we have Elizabeth Bennet, she is the second one. Then we have Mary, Kitty and Lydia. तो ये 5 बेटियां होती हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की, जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लिडिया. देन वी हैव मिस्टर डार्सी, फिट्जविलियम डार्सी, राइट? और उसकी बहन होती है जॉर्जियाना. देन वी ऑल्सो हैव मिस्टर बिंगली, और मिस्टर बिंगली की बहन होती है कैरोलाइन. There is one Mr. Collins also, okay, and Mr. Collins, and there is one Charlotte Lucas. Charlotte Lucas और Elizabeth दोनों दोस्त होते हैं, and Charlotte Lucas is the one who marries Mr. Collins. And Mr. Collins is also somebody like he is a distant cousin to Mr. Bennet, okay. और जब ये मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद जो सारा जो भी उनकी सारी प्रॉपर्टी या जो कुछ भी है, he is the heir, okay, he is the presumptive heir to the estate of Longbourn House after the death of Mr. Bennet, in case Mr. Bennet dies or when he dies. So जो सारी प्रॉपर्टी वगैरह है वो इसको मिलेगी. Then we have this one final character which is Mr. Wickham, and Mr. Wickham and Lydia, they in the end they are the ones who get together. So these are all the characters of Pride and Prejudice, and now let's move to the summary. Now what happens is जो Mr. Bingley होते हैं and he is a wealthy young bachelor, तो वो अभी कुछ टाइम पहले ही he has moved to this estate called Netherfield, okay? और जो मिसेस बेनेट है, इन 5 बच्चियों की माँ जिनकी हमने बात की थी, शी होप्स कि जो मिस्टर बिंगली है वो उनमें से उनकी 5 बेटी में से किसी एक से शादी कर लेंगे, ओके? अब जो ये बेनेट फैमिली है वो बिंगली से मिलती है और जो उनके साथ लोग आए होते हैं उनसे एक बॉल के दौरान, तो जो बॉल्स ऑर्गेनाइज होते थे ना उसके दौरान, अब जो मिस्टर बिंगली है ही इज अ फ्रेंडली पर्सन, ओके? और वो और जो जेन है, जो ओल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी होती है जेन, दोनों का दे हैव दिस इंस्टेंट अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. जो मिस्टर बिंगली की बहनें होती हैं दोनों, मिसेस हर्स्ट एंड मिस बिंगली, दे आर हॉटी एंड सुपीरियर अपने आप को समझती हैं वो. मिस्टर बिंगली का एक दोस्त भी होता है मिस्टर डार्सी करके, राइट? एंड वो मना कर देता है डांस करने की किसी भी के साथ विद एनीवन जो कि उसकी पार्टी की ना हो. तो एक पॉइंट पे जो एलिजाबेथ होती है, शी ओवरहियर्स डार्सी दैट ही इज स्नीयरिंग दैट एलिजाबेथ दैट शी इज नॉट अट्रैक्टिव इनफ फॉर हिम, ओके? अब जो जेन और बिंगली का जो दोनों का अफेक्शन है वो एक दूसरे के लिए बढ़ने लगता है टाइम के साथ. मीनवाइल जो मिस्टर डार्सी है, he becomes attracted to Elizabeth but he really does not like it, okay? अब जो जेन है वो बीमार हो जाती है जब वो एक दफा बिंगली सिस्टर्स को विजिट कर रही होती है नेदरफील्ड में, तो शी फॉल्स इल एंड देयरफॉर उसको वहां काफी दिनों तक रुकना पड़ता है. एंड बिकॉज शी हैज टू स्टे देयर, तो एलिजाबेथ को इनवाइट किया जाता है जेन के साथ रुकने के लिए. अब जो बिंगली सिस्टर्स हैं वो एलिजाबेथ और जेन का मजाक बनाती हैं उनकी पीठ के पीछे, एंड दे आर जोकिंग अबाउट कि कैसे वो सोशल स्टेटस में उनसे नीचे हैं, इंफीरियर हैं. एंड वाइल एलिजाबेथ स्टेज देयर, तो हर रात को ना एलिजाबेथ और डार्सी दे एंगेज इन विटी बैंटर, दोनों की आपस में दे आर टॉकिंग एंड एंगेजिंग इन दैट काइंड ऑफ अ बैंटर, एंड दे आर वर्बली स्पेयरिंग काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर. हर कॉन्वर्सेशन के साथ जो डार्सी है उसको एलिजाबेथ की जो इंटेलिजेंट है वो बहुत अट्रैक्ट करती है बार बार, एंड जो डार्सी का अट्रैक्शन है एलिजाबेथ के लिए, उससे मिस बिंगली को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज मिस बिंगली वो खुद शादी करना चाहती है मिस्टर डार्सी से. अब जो मिस्टर बेनेट की एस्टेट होती है लॉन्गबर्न, बिकॉज मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं होता, इसलिए जो उसकी सारी एस्टेट है वो उनकी डेथ के बाद इट विल गो टू मिस्टर कॉलिंस, ओके? सो मिस्टर कॉलिंस इज द वन जो कि मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद सारी ये जो एस्टेट है ही विल इनहेरिट इट. जो मिस्टर कॉलिंस है, he is a clergyman, okay, and he visits Longbourn उस फैमिली से, बेनेट फैमिली से मिलने के लिए. जो मिसेस बेनेट है वो बहुत खुश होती है जब उसे ये पता चलता है कि जो मिस्टर कॉलिंस है वो उनकी 5 बेटी में से किसी एक से शादी करना चाहते हैं, ओके? बिकॉज उससे होगा क्या, अगर मिस्टर कॉलिंस उसी की किसी 5 बेटी में से शादी कर लेंगे, विच मीन्स कि जो उनकी ये प्रॉपर्टी जो एस्टेट है वो फैमिली में ही रहेगी, राइट? अब जो बेनेट डॉटर्स हैं उनको बहुत मजा आता है व्हेन दे गो टू मेरिटन, जहाँ पर एक रेजिमेंट आया है ऑफिसर्स का,
वहां पर दे मीट द हैंडसम मिस्टर विकम, ओके, और मिस्टर विकम ही चार्म्स एलिजाबेथ। अब ये जो विकम है वो एलिजाबेथ को बताता है कि जो विकम का पिता था वो डार्सी के फादर का स्टीवर्ड था, ओके, और जो डार्सी था उसने अपने फादर की जो इच्छा थी, he defied that how by preventing विकम from receiving a living in the clergy, कि जो विकम है वो क्लर्जीमैन बन सके, डार्सी prevented that। और ये सुन के एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। अब नेदरफील्ड में एक बॉल होता है एंड एलिजाबेथ को बहुत शौक लगता है जब डार्सी उसको कहता है डांस करने के लिए, when he asks her to dance with him। तो जब एलिजाबेथ उसको कन्फ्रंट करती है कि हाउ ही डिड दिस टू विकम, तो डार्सी सजेस्ट करता है कि जो विकम का कैरेक्टर वैसा नहीं है जैसा उसने बताया है, ओके, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स। सो पूरी रात जो उसकी फैमिली एज इन एलिजाबेथ की फैमिली का जो ब्रैश बिहेवियर होता है उससे एलिजाबेथ को बहुत शर्म आती है, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। अगले दिन जो मिस्टर कॉलिंस है वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, पर जो एलिजाबेथ है वो डिक्लाइन कर देती है, वो मना कर देती है। और ये सुनकर मिसेस बेनेट को, उनकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। अब जेन को एक लेटर मिलता है मिस बिंगली की तरफ से, वेयर इट स्टेट्स कि जो सारी उनकी पार्टी थी, ये जो मिस्टर बिंगली और जो उनकी बहनें मिस्टर डार्सी एंड एवरीबॉडी, वो सब वहां से नेदरफील्ड से चले गए हैं एंड दे हैव लेफ्ट फॉर लंदन एंड दैट शी होप्स कि जो बिंगली है ही विल मैरी डार्सीज सिस्टर। तो मिस बिंगली ने लेटर लिखा जेन को ये बताते हुए कि वो लोग वहां से नेदरफील्ड से चले गए हैं और मिस बिंगली ये उम्मीद करती है कि जो मिस्टर बिंगली उसका भाई है वो डार्सी की बहन से शादी कर ले। तो जो जेन है वो बहुत डिसअपॉइंट होती है एंड शी स्टेट्स के उसने ही शायद मिस्टर बिंगली की फीलिंग्स को गलत समझ लिया था। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज शी बिलीव्स कि जो मिस बिंगली और उसकी जो एक और बहन मिसेस हर्स्ट है, उन्हें ये लगता है कि जो जेन है शी इज नॉट गुड इनफ फॉर देयर ब्रदर मिस्टर बिंगली। जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड होती है शार्लेट ल्यूकस, वो एक्सेप्ट कर लेती है मिस्टर कॉलिंस का प्रपोजल। जब एलिजाबेथ ने मना कर दिया होता है ना, तो वो शार्लेट लूकस के पास जाता है एंड शी एक्सेप्ट्स इट। तो जो एलिजाबेथ है शी इज डिसअपॉइंटेड इन शार्लेट बिकॉज शी इज सेटलिंग इन अ मैरिज, जिससे एलिजाबेथ को लगता है कि शार्लेट कभी खुश नहीं रहेगी। अब जो शार्लेट होती है शी इज अ प्लेन वुमन, उसके पास इतने कोई पैसे भी नहीं होते, शी डज नॉट हैव दिस फॉर्चून। तो वो एलिजाबेथ को अश्योर करती है दैट वो एक शादी में से फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है। तो शार्लेट और मिस्टर कॉलिंस की शादी के बाद जो एलिजाबेथ है शी विजिट्स देम एट हंसफोर्ड जहां वो रहते हैं। मिस्टर कॉलिंस जो है ही इज डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस एलिजाबेथ, जो मिस्टर कॉलिंस की पेट्रन होती है लेडी कैथरीन, तो वो उससे इंट्रोड्यूस करता है एलिजाबेथ को एंड दिस पेट्रन शी इज अ हॉटी पर्सन, ओके, एंड दिस पेट्रन इज आल्सो डार्सीज आंट। जो मिस्टर डार्सी थे उनकी आंट भी होती है ये लेडी कैथरीन डी बर्ग। नाउ जल्द ही क्या होता है, डार्सी आता है अपने कजिन कर्नल फिट्जविलियम के साथ और उस स्टे के दौरान जो डार्सी है ही गोज टू ग्रेट लेंथ ताकि वो एलिजाबेथ से मिल सके। अब एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है जब कर्नल फिट्जविलियम ये बताते हैं कि जो डार्सी था ही वाज द वन हु इंटरवीन्ड इन बिटवीन बिंगली एंड जेम्स रोमांस। तो जो डार्सी था वो उसके बीच में आया था। अब उस दिन बाद में जो डार्सी है वो एलिजाबेथ के पास आता है और अपने प्यार का इजहार करता है एंड ही स्पेल्स आउट कि जो उसका ऑब्जेक्शन है कि उसकी फैमिली एज एन एलिजाबेथ की फैमिली को लेकर, एंड वो उसका हाथ मांगता है शादी के लिए, वो उससे शादी करना चाहता है। अब जो एलिजाबेथ है शी इज डिस्गस्टेड बाय दिस और वो उसको मना कर देती है एंड शी आल्सो साइड्स कि वो कैसे उसकी फैमिली को इंसल्ट कर रहा है, कैसे ही वाज द वन हु मेड जेन अनहैप्पी एंड कैसे उसने विकम को भी गलत तरीके से ट्रीट किया था। जो डार्सी है ही इज स्टन्ड और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जो डार्सी है वो एलिजाबेथ को एक लेटर देता है जहां पर वो ये एक्सप्लेन करता है कि उसने बिंगली और जेन के रिलेशनशिप में इंटरफेयर इसलिए किया था बिकॉज उसे ये लगा था कि जो जेन का प्यार है बिंगली के लिए इट डजंट मैच जो बिंगली का अफेक्शन है जेन के लिए। सो ही ऑल्सो रिलेट्स कि विकम टर्न्ड डाउन द लिविंग इन द क्लर्जी और जो भी पैसे थे वो सब उसने उड़ा दिए एंड देन ही अटेम्प्टेड, जो डार्सी की छोटी बहन थी जॉर्जियाना, ही अटेम्प्टेड कि वो उसके साथ भाग जाए, उसको भगा कर ले जाए। एलिजाबेथ ये रियलाइज करती है कि जो डार्सी है वो एक्चुअली में सच बोल रहा है
एंड दैट उसने भी वही सेम प्रेजुडिस दिखाया डार्सी के प्रति, जिस प्रेजुडिस को लेकर उसने डार्सी को ब्लेम किया था, अक्यूज किया था। नाउ वापस घर पे जो लिडिया होती है, राइट, एंड शी इज द यंगेस्ट बेनेट डॉटर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ब्राइटन जाती है। ब्राइटन जहां पर वो जो ऑफिसर्स थे, रिमेंबर एक रेजिमेंट आया था, एंड दीज ऑफिसर्स आर नाउ स्टेशन इन ब्राइटन। तो जो एलिजाबेथ और उसके आंट और अंकल होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, दे टेक अ ट्रिप टू डर्बीशायर, जहां पर जो डार्सी की एस्टेट होती है पेम्बरली, दैट इज सिचुएटेड। अब पेम्बरली में जो ये मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर और एलिजाबेथ हैं, वो डार्सी की हाउसकीपर से मिलते हैं, और जो मिस्टर डार्सी की हाउसकीपर होती है वो उसकी काइंडनेस के और जेनरोसिटी की कहानियां बताती है उन तीनों को। एंड जब उसको ये इंफॉर्मेशन मिलती है एलिजाबेथ को, she is thinking about it, and they are exploring जो पेम्बरली एस्टेट है, जो उसके सुंदर से ग्राउंड्स है, they are exploring that, and then उनकी मुलाकात वहां पर डार्सी से होती है। एंड उस जो डार्सी था वो वहां पर जल्दी आ गया होता है देन वाज एक्सपेक्टेड, तो उसका अराइवल एक्सपेक्टेड नहीं था, एंड ही हैड अराइव्ड अर्लियर। तो जो एलिजाबेथ है वो ये नोटिस करती है कि जो उसके तौर तरीके हैं, जो उसका मैनर है, वो पहले के कंपैरिजन में जेंटलर है, राइट, एंड ही इज काइंड। जो डार्सी होता है, ही इज काइंड टू हर अंकल एंड आंट, एंड डार्सी बोलता है दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय यंगर सिस्टर जॉर्जियाना। एंड जो डार्सी और उसकी बहन होती है एंड मिस्टर बिंगली, दे विजिट द नेक्स्ट मॉर्निंग। डार्सी, उसकी बहन जॉर्जियाना और बिंगली अगली सुबह आते हैं एंड दे विजिट एलिजाबेथ। जो एलिजाबेथ है उसको मिस डार्सी इंस्टेंटली बहुत अच्छी लगती है, एंड शी इज हैप्पी कि जो मिस्टर बिंगली हैं वो अब भी जेन से प्यार करते हैं। She finds herself, feeling more and more warmly towards Mr. Darcy. अब एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है जेन की तरफ से, एंड इट इज टोल्ड टू हर उस लेटर में दैट जो लिडिया है वो विकम के साथ भाग गई है। एंड देन वो ये वाली जो खबर है, शी इज फोर्स्ड टू कन्फेस दिस टू मिस्टर डार्सी, एंड वो वापस अपने घर आती है एलिजाबेथ, एंड शी लमेंट्स दैट ही कुड नेवर लव हर नाउ। जो मिस्टर डार्सी है, he could never love Elizabeth now, and she is lamenting that. जो मिस्टर गार्डनर हैं, he goes to London लिडिया को ढूंढने के लिए और विकम को ढूंढने के लिए, एंड दे होप, जो फैमिली है इट होप्स कि वो लिडिया और विकम की शादी करा पाएंगे, ताकि जो बदनामी है वो नहीं होगी दैट ये जो दोनों जन थे ये शादी किए बिना साथ में रह रहे थे। अब शादी के बाद जो एलिजाबेथ है उसको ये मालूम चलता है कि जो डार्सी है, ही वॉज द वन जिसने विकम का जो उसके ऊपर इतना सारा कर्जा था, जो डेट था, ही पेड ऑल दैट, ताकि वो विकम को कन्विंस कर सके लिडिया से शादी करने के लिए। एंड एलिजाबेथ को जब ये मालूम चलता है तो शी इज ओवरवेल्म्ड बाय हिज काइंडनेस, एंड शी होप्स कि शायद ये जो ऐसा डार्सी ने किया वो उसके लिए किया, एज एन एलिजाबेथ के लिए किया। शी होप्स दैट बिंगली और जो डार्सी हैं दे रिटर्न टू नेदरफील्ड, और बिंगली जेन को प्रपोज करता है। एक दिन एलिजाबेथ, शी इज सरप्राइज जब उसको लेडी कैथरीन, रिमेंबर जो डार्सी की आंट भी थी और जो कॉलिंस की पेट्रन थी, शी विजिट्स एलिजाबेथ, और ये जो लेडी कैथरीन है वो ये कहती है कि उसे सुनने में आया है कि एलिजाबेथ डार्सी से शादी करने वाली है, एंड वो ये डिमांड करती है, लेडी कैथरीन ये डिमांड करती है कि वो ये प्रॉमिस करे कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। एलिजाबेथ ये प्रॉमिस करने से मना कर देती है। अब जब अगली बार एलिजाबेथ डार्सी को मिलती है एट लॉन्गबर्न, तो वो उसको थैंक यू बोलती है लिडिया को हेल्प करने के लिए, एंड दोनों अपना प्यार कन्फेस करते हैं एक दूसरे के लिए। एंड डार्सी एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने जो एलिजाबेथ ने उसको क्रिटिसाइज किया था, हाउ ही टुक दैट क्रिटिसिज्म टू हार्ट, एंड हाउ जो उसकी ये उम्मीद थी शादी करने की एलिजाबेथ के साथ, हाउ दिस वाज रिवाइव जब लेडी कैथरीन ने उसको बताया कि एलिजाबेथ ने ये प्रॉमिस करने से मना कर दिया कि वो डार्सी से शादी नहीं करेगी। So you see, जो डार्सी है, he is saying that my feelings for you, they have not changed last spring से लेके अब तक, when he had last proposed to her, and she accepts the proposal, and both Jane and Elizabeth, they are married by the end of the novel, and this is how the novel ends. Briefly talking just about the two themes, Pride and Prejudice, because the title is based on this, right? So टॉकिंग अबाउट प्राइड, तो नॉवल के अंदर जो प्राइड है वो नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स को सच देखने नहीं देती, द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। प्राइड इज द थिंग दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सीइंग द ट्रूथ, ओके। मोस्ट नोटेबली, इट इज वन ऑफ द टू प्राइमरी बैरियर्स
एलिजाबेथ और डार्सी के यूनियन के बीच में जो डार्सी का खुद का प्राइड है अपनी सोशल पोजीशन को लेकर, दैट लीड्स हिम कि वो बाकी लोगों को ही स्कॉन्स देम, पीपल हु आर आउटसाइड हिज ओन सोशल सर्कल। मीनवाइल जो एलिजाबेथ की प्राइड है इन हर पावर्स ऑफ डिसर्नमेंट, वो उसके जजमेंट को क्लाउड करते हैं एंड दे बोथ फाइंड हैप्पीनेस जब वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं इन ओवरकमिंग देयर ट्राइब। आउटसाइड अगर हम इन दोनों के बाहर की बात करें तो जो ऑस्टन है, शी seems pessimistic about the human ability to conquer this character flaw। जो बाकी सेकेंडरी कैरेक्टर्स है नॉवल के अंदर, जैसे कि मिसेस बेनेट, लेडी कैथरीन, कैरोलाइन बिंगली, मिस्टर कॉलिंस, दे स्टिल रिमेन deluded by personal pride पूरे नॉवल के दौरान। प्रेजुडिस के बारे में बात करें तो there's a critic who has commented कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में आप डार्सी को प्राइड के साथ और एलिजाबेथ को प्रेजुडिस के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। जो डार्सी का प्राइड है in his social place, that is founded on social prejudice, और जो एलिजाबेथ का initial prejudice है उसके against, that is rooted in pride of her own quick perceptions। तो अल्टीमेटली जो दोनों कैरेक्टर्स का ईगो है, it drives them towards personal prejudice। जो डार्सी है, he has been taught to scorn anyone जो उसके सोशल सर्कल के बाहर हो, एंड ही मस्ट ओवरकम हिज प्रेजुडिस ताकि एलिजाबेथ एक्चुअली में उसको लाइक करे। सिमिलरली जो एलिजाबेथ का एक्सेसिव प्राइड है अपनी इस कैपेबिलिटी में ऑफ डिसर्नमेंट, दैट लीड्स हर टू राइट डार्सी ऑफ टू क्विकली। वो डार्सी को बहुत जल्दी डिसमिस कर देती है बिकॉज उसको खुद को प्राइड है कि वो बहुत अच्छे से लोगों को जज कर पाती है इन हर डिसर्नमेंट। तो अल्टीमेटली दे find happiness जब वो recognize करते हैं the barriers that prejudice creates। So that would be all on Pride and Prejudice. I hope you liked the video. In case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching.